السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RH چینل لے کر. امید ہے یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی کی آپ کو اچھی لگتی ہوگی. یہ آپ کا اپنا چینل، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا. آج کے کردار میں سلطان صلاح الدین ایوبی، لیکن خنڈرات اور فرعونوں کے وقت کی ایسی روحانیت کہانی ہے کہ آپ سن کر کے اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں گے. کوئی 1 سال سے یہ کھنڈر لوگوں کی دلچسپیوں کا مرکز بن گیا تھا. اس سے پہلے سلطان ایوبی کی فوج کے لیے بھرتی کی مہم شروع ہوئی تھی تو بھرتی کرنے والے اس علاقے کے ارد گرد بھی گھومتے پھرتے رہے تھے. وہاں کے باشندوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ ٹیلوں کے اندر نہ جائے. انہیں پراسرار آوازیں، ڈراؤنی چیزوں اور بدروحوں کی کہانیاں سنائی گئی تھی. اس علاقے سے فوج کو بہت بھرتی ملی تھی، مگر اس کے بعد بھرتی کرنے والے گئے تو لوگوں کا رجحان بدلا ہوا تھا. سرحد پر گشت کرنے والے دستوں نے رپورٹ دی تھی کہ گشتی سنتری بھی اس علاقے کے اندر نہیں جایا کرتے تھے. انہوں نے کبھی کسی انسان کو ادھر جاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ لوگوں کو اندر جاتا دیکھتے ہیں اور وہاں سے آنے والے ڈرے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ مطمئن سے نظر آتے ہیں. اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ آج جمعرات کے روز رات تک اندر میلہ سا لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوا کہ سرحدی دستوں کے 4-5 سپاہی لاپتہ ہو گئے. ان کے متعلق یہ رپورٹ دی گئی تھی کہ بھگوڑے ہو گئے ہیں. سلطان ایوبی نے جہاں دشمن کے ملکوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے، وہاں اس نے اپنے ملک میں بھی جاسوسوں کا جال بچھا رکھا تھا. غیر مسلم مورخوں نے سلطان ایوبی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس نے آج کی انٹیلیجنس نظام اور کمانڈر طریقہ جنگ کی خصوصی اہمیت دے کر ٹریننگ کے نئے طریقے دریافت کیے اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ صرف 10 افراد سے 1000 نفری کی فوج کا کام لیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے یورپی مورخوں نے سلطان ایوبی کے اس فن کو تاریخ میں اتنی جگہ نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی. لیکن اس دور کے واقعی نگاروں نے جو تحریری قلم بند کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا یہ عظیم پاسبان انٹیلیجنس، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کا کس قدر ماہر تھا. اندرون ملک اس کی انٹیلیجنس کے گوشے گوشے پر نظر رکھتی اور فوج کی مرکزی کمان کی رپورٹیں دیتی رہتی تھی. یہ اس نظام کی اعلیٰ کارروائی کا ثبوت تھا کہ مصر کے دور دراز کے ایسے علاقے کی سرگرمیوں کی بھی اطلاع مرکز کو پہنچا دی گئی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس چھوٹے سے خطے کو تو خدا نے بھی فراموش کر رکھا ہے. مگر مخبروں نے وہاں کے لوگوں کو صرف ذہنی تبدیلی دیکھی اور اس کی اطلاع دی تھی. انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا ہوتا ہے. اس اطلاع کے بعد 2 مخبر قتل یا لاپتہ ہو گئے تھے. وہاں کے لوگوں نے صرف ٹیلوں کے ڈراؤنے علاقے کے اندر جانا شروع کر دیا، بلکہ وہ فرعونوں کی اس پیچ در پیچ عمارت کے خنڈروں میں بھی جانے لگے تھے، جہاں جانے کے تصور سے ہی ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کچھ عرصہ پہلے اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ ایک گاؤں میں ایک شتر سوار آیا. یہ اجنبی مسلمان اور مصری تھا. اس کا اونٹ اچھی نسل کا اور تندرست تھا. اس مسافر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ایک قصہ سنایا کہ وہ غربت سے تنگ آ چکا تھا. اب وہ رہزنی اور چوری کے ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا. وہ پیدل تھا. وہ اس امید پر اس علاقے میں آ گیا کہ یہاں کوئی آبادی نہیں، اس لیے رہزنی کرتے پکڑا نہیں جائے گا. وہ بہت دن پیدل چلتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا. آخر ٹیلوں کے اس علاقے میں جہاں کوئی نہیں جاتا وہ جا کر گر پڑا. اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی تھی. اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے خدا سے مدد مانگی. اسے ایک گونجدار آواز سنائی دی، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے ابھی گناہ نہیں کیا. گناہ کی صرف نیت کی ہے. اگر تم کسی کو لوٹ کر یہاں آتے تو تمہارا جسم ہڈیوں کا پنجر بن جاتا اور شیطان کے چھوڑے ہوئے درندے تمہارا گوشت جو تمہارے سامنے پڑا ہوا ہوتا تمہیں دکھا دکھا کر کھا جاتے. اس آواز نے اجنبی پر غشی طاری کر دی. اس نے محسوس کیا کہ کوئی اسے اٹھا رہا ہے. اس نے آنکھیں کھولی تو وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک سفید ریش بزرگ کھڑا تھا جو دودھ کی مانند سفید اور آنکھوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھی. وہ جان گیا کہ یہ آواز جو اس نے سنی تھی اس بزرگ کی تھی.
अजनबी की जुबान बंद हो गई और वो कांपने लगा। बुजुर्ग ने उसे उठाकर कहा, मत डर मुसाफिर, ये सब लोग जो यहाँ आने से डरते हैं बदनसीब हैं, इन्हें शैतान इधर आने नहीं देता। तुम जाओ और लोगों से कहो कि यहाँ फिरौनों की खुदाई नहीं रही, हजरत मूसा की ममलकत है, हजरत ईसा भी यहीं आसमान से उतरने वाले हैं। अब इस्लाम की कंदीलें इस खंडर से रोशन होगी जिनकी रोशनी सारी दुनिया को मुनव्वर करेगी। जाओ, लोगों को हमारा पैगाम दो, उन्हें यहां लाओ। अजनबी ने कहा कि वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जिस्म सूख गया है। सफेद रेस बुजुर्ग ने कहा, तुम उठो और 50 कदम शुमाल की तरफ जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना, डरना नहीं, लोगों तक पैगाम पहुंचा देना वरना नुकसान उठाओगे। तुम्हें एक ऊंट बैठा हुआ नजर आएगा, उसके साथ खाना और पानी होगा और उसके साथ जो कुछ होगा वो तुम्हारा होगा। अजनबी ने गांव वालों को सुनाया कि वो उठकर चलने लगा तो उसके जिस्म में ताकत आ गई थी। वो डर रहा था कि ये किसी फिरौन की बदरूह है। उसने पीछे नहीं देखा, बदरूह के डर से कदम गिनता रहा और रास्ता घूम गया। 50 कदम पर यह ऊंट बंधा हुआ था, उसके साथ खाना बंधा हुआ था जो उसने खा लिया और पानी पी लिया। उसके जिस्म में ऐसी ताकत आ गई जो पहले उसके जिस्म में नहीं थी। उसने लोगों को एक थैली खोलकर दिखाई जिसमें सोने की अशरफियां थी। ये थैली ऊंट के साथ बंधी हुई थी। अजनबी ऊंट पर सवार हुआ और उस गांव में आ गया जिसमें बैठा वो किस्सा सुना रहा था। उसके बाद उसने गांव वालों को सफेद रेश बुजुर्ग का पैगाम दिया और चला गया। उसका सुनाने का अंदाज ऐसा पुरअसर था कि लोगों के दिलों में टीलों के इलाके में जाने का इश्तियाक पैदा हो गया। लेकिन गांव के बूढ़ों ने कहा कि अजनबी इंसान नहीं बल्कि खंडर के शिरे शरार का हिस्सा है। इंसानी फितरत में एक कमजोरी है कि छुपे हुए को बेनकाब करने की और भेद को पा लेने की कोशिश करती है। जिन जिस्मों में जवानी का खून होता है वो खतरे मोल ले लेते हैं। गांव के जवानों ने इरादा कर लिया कि वो वहां जाएंगे। अशरफियों का जादू बड़ा सख्त था जिससे वो लोग बच नहीं सकते थे। इस 40 मील लंबे और 10 मील चौड़े खत्ते में जितने गांव थे उन सब से इत्तलाएं मिली कि एक अजनबी मुसाफिर यही किस्सा सुना गया है। कुछ लोग तजब्जब में थे और कुछ तजब्जब और फैसले के दरमियान भटक रहे थे, मगर उधर जाने से सब डरते थे। बाज आदमी गए भी लेकिन टीलों के पुरस्कार इलाके को दूर से देखकर वापस आ गए। कुछ रोज बाद 2 जवां साल शूत्र सवार तमाम इलाके में घूम गए। उन्होंने भी यही ऐसा ही किस्सा सुनाया जो जरा मुख्तलिफ था। वो बहुत दूर के सफर पर घोड़ों पर जा रहे थे। उनके साथ 2 टट्टू थे जिन पर कीमती माल था। ये तिजारत का माल था जो वो सूडान ले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें डाकुओं ने लूट लिया। माल के साथ घोड़े और टट्टू भी छीन लिए और उन्हें जिंदा छोड़ दिया। ये दोनों टीलों के इलाके में आकर थकन और भूख प्यास और गम से गिर पड़े। उन्हें भी सफेद रेश बुजुर्ग नजर आया। उसने उन्हें वही पैगाम दिया और कहा, तुम्हें शैतान के दरिंदों ने लूटा है, तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, जाओ। तुम्हें 50 कदम पर 2 ऊंट खड़े मिलेंगे और उनके साथ जो कुछ बंधा हुआ होगा वो तुम्हारा होगा। लेकिन माल और जर देखकर आपस में लड़ न पड़ना, वरना हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। उन्हें भी इस बुजुर्ग ने कहा कि गांव गांव जाकर लोगों को पैगाम दे कि उन खंडरों से डरे नहीं। उसके बाद ऐसी बहुत सी रिवायतें सुनाई और सुनाई जाने लगी। उनमें डर और खौफ का कोई तासुर नहीं था, बल्कि ऐसी कशिश थी कि लोगों ने टीलों के इर्द गिर्द फिरना शुरू कर दिया। उन्होंने बाज लोगों को अंदरूनी इलाके से बाहर जाते और आते भी देखा। उन्होंने बताया कि अंदर एक दरवेश बुजुर्ग है जो गैब का हाल बताता और आसमानों की खबर देता है। यह भी कहा गया कि वो इमाम मेहंदी है। किसी ने कहा कि हजरत मूसा है और कोई हजरत ईसा कहता था। एक बात वशोक से कही जाती थी कि वो जो कोई भी है खुदा का भेजा हुआ है और वो गुनाहगारों से ना मिलता है ना उन्हें नजर आता है। उसके पास जाने के लिए नियत साफ होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। ये तिरस्माती और पुरस्कार रिवायतें और हिकायतें लोगों को अंदरूनी इलाके में ले जाने लगी।
आगे जाकर उन्होंने पहली बार वो खंडर देखे जिनसे वो डरते थे, उनके अंदर भी गए। ये कमरों, गुलाम गर्दिशों और गारों जैसे रास्तों की भूल भुलैया थी। एक कमरा बहुत ही वसी और उसकी छत ऊंची थी, जाले लटक रहे थे और माहौल पर हैबत तारी थी, लेकिन वहाँ खुशबू फैली हुई थी। कई सीढ़ियां फर्श से नीचे जाती और तहखानों में जा खत्म होती थी। ये इमारत उन फिरौनों की थी जो अपने आप को खुदा कहते थे। वो किसी किसी को नजर आते थे, लोगों को इस इमारत में इकट्ठा कर लिया करते और लोगों को उनकी सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज ऐसी सुरंगों में से गुजर कर आती थी जिनके दहाने बड़े कमरे में थे मगर नजर नहीं आते थे। बोलने वाले सुरंग के दूसरे सिरे पर होता था, जिसके मुतालिक कोई जान नहीं सकता था कि कहाँ है। वो उसे खुदा की आवाज समझते थे जो आम आदमी को नजर नहीं आता। इन बड़े कमरों में रोशनियों का ऐसा इंतजाम हुआ करता था कि मशालें नजर नहीं आती थी। कमरे रोशन रहते थे, आईने की तरह चमकीली धात की चादरें इस्तेमाल की जाती थी जिनसे छुपी हुई मशालों की रोशनी मुनाक्कस होती थी। वो तो सदियों पुरानी बात थी। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में इस इमारत में फिर वही आवाजें गूंजने लगी जिन्हें लोग खुदा की आवाजें समझा करते थे। जरा से वक्त में लोगों के दिलों से खंडरों की हैबत निकल गई। वो जब बड़े कमरे में जाते तो उससे पहले उन्हें अंधेरे और फराख सुरंगों में से गुजरना पड़ता था। आगे बहुत ही फराख और ऊंची छत वाला कमरा आ जाता जिसमें रोशनी होती मगर कोई मशाल नजर नहीं आती थी। वहां गूंज की तरह आवाज आती, हमने तुम्हें अंधेरों में से निकाल कर रोशनी दिखाई है। ये कुएं तूर की रोशनी है, उस नूर को दिलों में दाखिल कर लो। फिरौनों की बदरूहें भी मर गई हैं। अब यहाँ मूसा का नूर है और उस नूर का ईसा और ज्यादा मुनव्वर करेगा। खुदा को याद करो, कलमा पढ़ो। और लोग हैरत से मुंह खोले और आंखें फाड़े एक दूसरे को देखते और कलमा तैयबा गुनगुनाना शुरू कर देते थे। अगर उस आवाज में खुदा का, हजरत मूसा, हजरत ईसा और कलमा तैयबा का जिक्र ना होता तो लोग शायद उसका यह असर कबूल न करते जो वो कर रहे थे। वो सब मुसलमान थे, अपने मजहब के नाम पर वो इस असर को कबूल कर रहे थे। और जब उन्हें ये आवाज सुनाई दी, रसूल खुदा को खुदा ने गारे हीरा के अंधेरे में रिसालत अता की थी, तुम्हें भी इन गारों के अंधेरे में खुदा का नूर नजर आएगा, तो लोगों ने सर झुका लिया और उस आवाज को जिसकी गूंज में तिलिस्माती असर था अपने दिल पर नक्श कर लिया। लेकिन लोग इस हस्ती तक पहुंचना चाहते थे जिसकी आवाज थी और जो मुसाफिरों को ऊंट, खाना, पानी और अशरफियां देती और मुर्दों को जिंदा करती थी। लोगों की बेताबियां बढ़ती जा रही थी। वो अपने घरों को जाते तो उन्हें औरतें बताया करती कि एक अजनबी आया था जो खंडर वाले दरवेश की करामात सुना गया है। वो कहता था कि उसने दरवेश की ज़ियारत